up your palms and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. सब लोग, सबका एक बार हार्दिक स्वागत है. All of you are welcome. It's nice to meet you all. Good evening, sir. Now, जैसे हम लोगों ने EOV में किया था, like what we did in EOV. So the first part, अभी पहला भाग इसका क्या होगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और दूसरे भाग में आई शैल ट्राई टू रिवाइज इन अ वेरी शॉर्ट वे द टोटल थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट. अभी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, ये अब आपका समय है. यू शुड आस्क क्वेश्चंस. और मैंने जो केस भेजा था सर, उसमें हम और क्या कर सकते हैं सर? आपने जो केस भेजा था, जो मिडिल फिंगर जो ट्रेमर हो रहा था, उसमें मुझे ये डाउट है कि आपकी डायग्नोसिस पूरी तरह से ठीक नहीं थी. GW5 GB41 आया, वो तो अच्छी बात है ना. यस सर. लेकिन आपको P6 अलग से लगाना पड़ा. यस सर. तो P6 एक मास्टर पॉइंट भी है. यस सर. तो इसलिए मैंने लिखा था एक कमेंट कि आपको फिर से उसको डायग्नोज करना चाहिए था. देखिए, जो बेल्ट वेसल है, दैट इज गॉल ब्लैडर 41, व्हाट इट डज, इट ट्रांसफर्स द yang chi into yin meridians. Hello. Yes sir. But what has happened, in fact, tremor is what is an excess condition. Yes sir. It's a kind of a stagnation of wind. Stagnation of wind. What is wind here? The wind is the innervation, है ना. तो जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है, जो नर्व्स की सप्लाई है, वो दैट इज नॉट स्मूथ, एंड देयरफॉर यू गेट this tremors, any tremors or blinking or any such kind of thing. What you get is that only. तो मैंने थोड़ी देर में एनालिसिस किया दिमाग में, तो मुझे लगा कि एक बार और आपको चेक करना चाहिए. लेकिन फर्स्ट डे जो मैंने उसको ट्रीटमेंट किया था, ओनली यू कनेक्टिंग पॉइंट पी करिकार्डियम को मैंने सेडेट किया था, तो वो उसी से 50% रिलीफ तो उसी से आ गया था सर. P6 तो मिलना ही चाहिए था ना फिर. ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ. चलो कोई बात नहीं है. और P6 नहीं, स्पेशली अगर आप केवल SP4 लगाते तो काम हो जाता था. हाँ, काम हो जाता. एक पेशेंट मेरे पास आई थी, कुछ लोग यहाँ जो बंबई के हैं वो जानते होंगे. एक चोदनकर साहब है यहाँ, डॉक्टर चोदनकर. उनकी एक लड़की है, वो भी अब काफी होशियार हो गई, सीनियर हो गई है. तो उसके मिडिल फिंगर में एक प्रॉब्लम थी कि उसका मिडिल फिंगर का जो अपर पोर्शन था, दैट वाज बेंट. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आई जस्ट टच्ड इट विथ प्रोब स्प्लीन 4, तुरंत सीधा हो गया था उसी समय, जबकि वो बहुत दिनों से था टेढ़ा. तो EOV में बहुत ताकत है. It's a very very strong thing, और you should try to diagnose properly and apply the points properly. But anyway, you were a winner. You did a very good job. Thank you sir. अब तो बिल्कुल ठीक है सर. Sir. Yes. I got one question. Please put on your camera.
if you can, of course. Yes. Yes, Dr. Sir, Raj. I got yesterday I got one case in which right great toe उसके और foot great toe उसके पीछे जो भाग है great toe and Right. right great toe Great toe money. What is that? Great toe. आपला फुट को ग्रेट टो बोलते हैं, फुट को थंब बोलते हैं, जैसा थंब है ना हाँ. तो अच्छा, big toe. अच्छा, हाँ. ग्रेट टो है। हाँ. ग्रेट टो का पीछे वाला पोर्शन है उधर उसको टच करने से बहुत दिन से आज almost 3 to 4 months he has been to all neurologists orthopedic not got relief and he has numbness and pain both together. उससे ऊपर से 2 मेरिडियन जाती है, one is plain, the other one is liver. What do you suggest what to do in this case? Have you seen the blood test of this patient? No, I have not seen the cases, but इसमें क्या होता है? Please see because right toe is the first spot for uric acid. Sorry? Uric acid. No, uric acid is normal. That I asked him. Uric acid is absolutely normal. There is no pain in the joint. And the portion below, that is in the sole, that is painful. Not the Sole side. Sole side, yes, sole side. Oh, okay. And that I have confirmed. So it is a pain on touch and walking, or it is painful? It is painful on touching, and there is a numbness, both together. But the patient is not diabetic. He is non-diabetic. He is very young. He is just 22 years. That doesn't mean diabetes can. No, you have checked. That I have confirmed. If there is no diabetes, then what you should do? That means it is the nerve which is giving problem. Yes. And it is confined in a very small boundary. Yes. The boundary. So what you should do? You should try to sedate the yin of nerve reaching there. Right? How will you reach? Now you are a master of Sujok. This is basically right foot. So in terms of Sujok, we will try with humidity. Don't try that. You go to they see Parksa, what Professor Park suggested was only 3 steps. First is you should select the symptom. System. What is the system? System is nervous system. Nervous system, yes. Isn't it so? So you go to the nervous system. Nervous system means which meridians? Only the young meridians you have to take. Why you have to take young meridians? Because nerves should be treated through young meridians only. Yes, you are right. Right? Yes. So which 3 meridians are going in the leg? Young meridians. UB, stomach, and GB. Okay. Isn't it? So system is what? System is nervous system. The total culmination of all the young meridians are where you will find all the chi, cooled chi in the triple warmer. So what you should do? You should go to the triple warmer. Legs you should go. Which leg is what? If you divide your body, then legs are coldness. So you should go to the cold point or coldness point. You should go to TW water point, triple warmers water point. Then you should go to which place? Dryness? No, water means triple warmer water. You should go urinary bladder. Achha, UV. Water, that is the water meridian, isn't it? And you should know that urinary bladder is the master for all the nerves in your leg, because the only nerve which is going in your leg is sciatic nerve. Yeah, correct. And all the nerves, wherever it is going, even the toes, fingers, etc., they are the branches and sub branches out of that one. Okay. So what you should do in the urinary bladder, what you should do now, because the legs are the only thing which is there now. So the 2 legs together, you should make a cyclical order, not vertical, because the status is different. Left leg there is no problem, right leg there is problem. So there is a difference of status between the 2 legs. Correct. So cyclical. So left you all the young. So how will you divide?
wind, heat, hotness, humidity. Humidity. So the toe, big toe, and the next toe, etc. This portion of the right leg will come in the humidity. There is humidity. Yes, correct. Right. So what you will do? UB 54 or 40, BL 40, whatever. Okay. The same point. Right. And then what you should do? Sedate yin. Sedate yin. How will you do? Because this is a tissue. So what you should do? You should take diagonal meridians. Because this is, so which meridian you will take? Because what you want to reduce is coldness and dryness. So either you go to the coldness spiral or you go to the dryness spiral. And then set it there. Simple. Okay. Any other question? Anyone else? और किसी को कुछ पूछना है? How did you reach to humidity in the right toe? You started on from the left circular. You see, there are two legs, left leg and right leg. Yeah. So yang energies will come on the left and the yin energies will go to the right. So if you do cyclical order, wind, heat, hotness, then the right foot will come to humidity and ankle to knee will become dryness and knee to thigh will become coldness. Okay, this is not Thank you. class we will do the upgraded, that is part 2 of regional diagnosis. It is still on the cards. We are waiting that all the new people, they should come up to the level. सब लोग एक level में आ जाए, तब हम लोग वो काम करेंगे. एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया है रीजनल डायग्नोसिस का, दूसरा पार्ट हम लोग एडवांस वाला करेंगे. लेकिन उसके पहले वी मस्ट नो सर्टेन मोर थिंग्स. सो वी प्लान दैट पहले हम लोगों ने क्या किया, ईओवी को फॉलो वाला किया है ना. फिर अब क्या कर रहे हैं, 5 एलिमेंट थ्योरी, ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. फिर हम लोग करेंगे लॉन्ग मेरिडियंस. राइट. तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो लॉन्ग मेरिडियन का आ रहा है. लेकिन आज हम लोग 5 एलिमेंट पे लेट अस कंसंट्रेट. किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आइए हम लोग रिवाइज करें ताकि जल्दी जल्दी हो जाए सारा काम. ठीक है ना. अच्छा देखो, 5 एलिमेंट थ्योरी में बहुत जरूरी है 2-3 चीजें. Acupressure, acupuncture is all about regulating generation and distribution of chi. ये तो मालूम है सबको. और इस रेगुलेशन में ची के 2 कैटेगरीज हैं, एक यिन और एक यांग. तो अनलेस यू अंडरस्टैंड यिन एंड यांग, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल. यिन और यांग को समझना बहुत आवश्यक है. तो 5 एलिमेंट थ्योरी में सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए, यिन और यांग. यिन यांग अगर सबकी समझ में आ रहा है, आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, हैं? और नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको पता है. सर कन्वर्जन पूछना है, यिन यांग कब हो जाती है और यांग यिन कब हो जाता है, कैसे होता है? यिन और यांग है क्या? 2 बल है. यस सर. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? मूवमेंट, नो मूवमेंट. मूवमेंट, नो मूवमेंट. और नो मूवमेंट मतलब क्या होता है? एक्चुअली जितनी क्रिएशन है दैट इज मूवमेंट ओनली. यस सर. है ना. लाइफ इज व्हाट? मूवमेंट ओनली. मूवमेंट. नहीं तो नो मूवमेंट तो दिखेगी ही नहीं. यू विल नॉट बी एबल टू परसीव. सिमिलरली मूवमेंट भी नहीं दिखेगी अगर नो मूवमेंट ना हो. तो याद रखिए, मूवमेंट जो है वो एक्शन है, नहीं बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है चेंज का, नहीं. और यिन क्या है? उसका रिएक्शन है, रिस्पॉन्सिव फोर्स. ये जो रिस्पॉन्सिव फोर्स है, इसका जब रिस्पॉन्स आएगा
तो पहला वाला रिस्पॉन्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, यांग हो जाएगा, और रिस्पॉन्स का जो रिस्पॉन्स होगा वो उसके कंपैरिजन में यिन हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात है? नहीं सर, आ गई समझ में। हाँ, तो क्या होता है, रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन अगर बढ़ जाए नहीं, तो क्या होता है, ये इट स्टार्ट्स वर्किंग। अभी ज्यादा हो गया ना, ये तो ज्यादा हो गया, दैट बिकम्स द एक्टिव फोर्स, वो एक्टिव फोर्स हो जाता है। इसका जो रिस्पांस आएगा, मतलब दिस विल कॉज अनदर रिस्पांस, वो जो रिस्पांस आएगी वो यिन हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, और ये जो यिन थी वो यांग हो गई, है ना। पहला स्टार्ट कहां से होता है प्रोसेस, प्रोसेस स्टार्ट्स विथ यांग फोर्स, नेवर यांग विथ यिन से कभी नहीं स्टार्ट, यांग से होता है ना। और जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही उसका रिस्पांस आया, और रिस्पांस का जो रिस्पांस है, तो लोग कहने लग जाते हैं यिन हैज चेंज्ड इनटू यांग। ऐसा नहीं, वो होगा ही, वो दूसरा ही है। यिन और यांग दोनों कहां से आ रहे हैं, दोनों ही एब्सोल्यूट से आ रहे हैं, है ना? दोनों ही एब्सोल्यूट से आ रहे हैं। तो सर जैसे 5 एलिमेंट में हम पढ़ते हैं, किसमें, तो विंड जो है 5 एलिमेंट में, हाँ जैसे जो वुड फेज है, हाँ वुड फेज 2 एनर्जी से मिलके बनता है। है 2 एनर्जी, विंड एनर्जी आपकी यिन होती है, और मेटल जो होती है वो यांग होती है। तो जैसे विंड इन हुई, मतलब यांग मेटल हुई तो विंड आई। हाँ, तो उसके जो बहुत अच्छे, वेरी गुड response वेरी गुड। तो विंड का रिएक्शन क्या है, मेटल है। विंड का रिएक्शन ड्राइनेस है, वुड का रिएक्शन मेटल है, तो ऐसे ही जब वो बढ़ेगा तो वो फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फायर का रिएक्शन क्या होगा, फिर वो आपका वाटर में हो जाएगा। ठीक तो है, समझ में तो आ रही है आपके। नहीं सर, मैं पूछ रहा अरे था। इतनी बात नहीं समझते भाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स, डोंट वरी इतनी ही बात बहुतों को नहीं मालूम। बहुत अच्छी, वेरी गुड। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। जब हम इस साइक्लिक मूवमेंट में हम कैलकुलेशन करते हैं वुड फेज की, तो 15% मैंने बुक में पढ़ा था, 15% था आपका वुड एलिमेंट। इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, नो 15% एब्सोल्युटली अप्रॉक्सीमेट, अप्रोक्सीमेशन, डिपेंडिंग टोटल, हाँ जो है उसका 15% अप्रॉक्सीमेट। जैसे किसी की लाइफ है, लाइफ किसी की 100 होती है, किसी की 80 होती है, जो भी है, तो ये कोई स्टैंडर्ड है या लगभग टोटल का मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं? आपने उस किताब में और आगे नहीं पढ़ा कि हमने 15% कैसे निकाला? टोटल करीब 80 साल का निकाला था ना, गलत है, और पढ़िए। हमने ये निकाला था बाय मेजरिंग स्पाइन, लेंथ ऑफ स्पाइन। हाँ, वो डेवलपमेंट सर्विकल का, कितना है, हाँ अच्छा। 5 भाग है उसके भी। यस और सर। क्या किया था, हमने देखा था लेडीज की रिप्रोडक्टिव एज। यस सर। लेडीज का फुल बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक। यस सर। इसके 5 भाग किए। ठीक है। पहला हिस्सा तो 14 साल, 13, 14, 15 भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो ज्योतिष में पाराशर में महादशा सिस्टम है, क्या वो इससे कहीं रिजेंबल करता है? आप करवाओ ना रिजेंबल। मैं सर पूछ रहा था। ठीक है सर। वो प्रोजेक्ट मेरा बहुत पहले था, और यस सर। आई एम नाउ आउट ऑफ टच, कर नहीं पाया उसको, बहुत सी बातें हो गई। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? बट आई शैल हेल्प यू, आप इंडिविजुअली कभी पूछेंगे, आई विल हेल्प यू। और कोई क्वेश्चन, कोई और कुछ पूछना चाहे? सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आपने जो ऑर्गन क्लॉक सिखाया है ना, इसमें आप बोलते हैं कि आइदर सिनेट सन और टोनिफाई योर मदर, लेकिन वो एक्चुअली जो पॉइंट ओपन रहता है दैट इज डिफरेंट ऑर्गन क्लॉक में। बराबर है, होररी पॉइंट खुलता है, होररी पॉइंट खुला हुआ है। होररी पॉइंट को हर समय
सेडेट करना चाहिए, ऑलवेज सेडेट, चाहे वो एक्सेस कंडीशन हो चाहे डेफिशिएंसी कंडीशन हो, जो उसका टाइम है ओपनिंग टाइम। लेकिन इफ यू आर स्मार्ट एनफ देन यू शुड नो कि अगर एक्सेस है तो जिस टाइम में एक्सेस हो रहा है उस टाइम में केवल क्लोज करिए, और अगर डेफिशिएंसी है तो जिस टाइम में डेफिशिएंसी हो रही है उस टाइम में क्लोज करिए, एक ही घंटे क्लोज करना पड़ेगा। अरे हॉरर पॉइंट पे ही लगाने का है ना, ओनली यूज हॉररी पॉइंट ना। हाँ, तो दो पॉइंटों से ट्रीटमेंट होगी ना, हॉररी पॉइंट को सेडेट करेंगे और मदर और सन पॉइंट में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। मदर पॉइंट को सेलेक्ट किया तो टोन करेंगे और सन पॉइंट लगाना पड़ता है तो नहीं, सॉरी, मदर पॉइंट को सेलेक्ट किया तो टोन करेंगे और सन पॉइंट को सेलेक्ट किया तो सेडेट। ठीक है, नहीं लेकिन दो नीडल लगाना तो 1 नीडल से काम हो गया। 2 नीडल से काम होगा ना, एक हॉररी पॉइंट पे जाएगा। अच्छा, और आइदर सन और मदर, हाँ, 2 से काम होगा। लेकिन अगर मान लो टाइम बीत गया है, इफ द हॉररी टाइम, ऑर्गन क्लॉक का जो टाइम है ओपनिंग का, इफ दैट इज ओवर, सपोज उसको मॉर्निंग में प्रॉब्लम हुआ, रोज प्रॉब्लम हो रहा है, शाम को आपके पास आ रहा है इलाज के लिए, then there is no point in treating the horary point. ठीक है ना, करेक्ट। देखो इसमें और भी आएगा। मान लीजिए कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लोग बहुत घबरा जाते हैं। There was one person, he is an Indian of course, but he lives abroad, और उसको काफी यहाँ प्रोमिनेंस था एंड लोगों ने में काफी आदर था उनका, तो उन्होंने इस तरह का एक केस ग्रुप में डाला था। आई वाज आल्सो देयर इन दैट। तो सिम्टम्स उनको दूसरे मिल रहे थे और जो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से दूसरा मेरिडियन खुल रहा था, तो ही वाज स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने क्या किया, सिम्टम्स को ट्रीट किया। ओके, देन आई रिप्लाइड टू हिम, अगर सही ऑर्गन क्लॉक आपको मालूम होता तो you would have selected the right point and this problem would have been solved with the help of only 2-3 points. So he agreed to it because he never knew about this organ clock. Okay. You were there also in that group. Yes. I don't want to name, but I gave him a private reply. You remember somebody said that he is a genius. Someone said. Avinash was also there in that group. Anyway, yes. So हाँ, तो आपको ऑर्गन क्लॉक अगर ढंग से आता है तो डोंट गेट ड्रिवन अवे बाय सिम्टम्स, गो बाय ऑर्गन क्लॉक, दैट इज द बेस्ट थिंग। यिन और यांग पर एक हम आप लोगों से सवाल करते हैं, सब लोग सोच के बताइए। अभी डॉक्टर आचार्य ने एक केस सॉल्व किया है माइग्रेन का। सब लोग माइग्रेन नाम से परिचित हैं? डॉक्टर आचार्य से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माइग्रेन क्या होता है? Migraine is a one-sided headache, either left or the right side. Usually symptoms on the GB channel associated with vertigo, that is giddiness and vomiting, and precipitated by the heat or spicy food, or sometimes a mental tension. Sometimes mental tension. सबने सुना? अब हमको ये बताइए कि ये माइग्रेन को किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि देखिए दो ही बात हो सकती है। There are only 2 causes for any disease. What? The disease can be either due to excess or due to deficiency. Migraine क्या है? Is it because of deficiency? It is a deficient condition or an excess condition? Excess condition. Excess of yang. Excess of yin की deficiency. yin deficiency condition. हाँ, यश क्या बोल रहे हो? Deficiency condition होती है। सर इसमें भी ऐसे 2 पैटर्न से देखा जाता है। माइग्रेन में 2 टाइप्स के होते हैं, एक यांग, एक yin एक्सेस। इसके ऊपर एक ऐसे मतलब कि गॉल ब्लैडर जो एक मेन ऑर्गन होता है, उसमें बताया गया था कि जब भी उससे एक्सेस ब्लड फ्लो होने लगता है
हाँ, जब भी एक्सेसिव बाइल आपकी आवाज कट रही है। तो सर अगर लेफ्ट बैक साइड हेड से पेन शुरू किया जाता है, और जब हमेशा बिल्कुल नहीं, आपने बहुत सही कहा। दो तरह का है, एक एक्सेस है और एक डेफिशिएंसी है। अगर है तो, लेफ्ट साइड सॉरी लेफ्ट हाँ, साइडेड है तो यिन डेफिशिएंसी है लिवर, और राइट साइडेड है तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी है, नहीं ऐसा लीडिंग टू राइज इन यांग। नहीं, यू आर गेटिंग इट द अदर वे अराउंड डॉक्टर ममता। ओके, ये बात इसने यश ने बहुत अच्छी कही कि there are two conditions possible. One can be because of deficiency and the other can be because of excess. तो अगर डेफिशिएंसी है तो इसमें किस चीज की डेफिशिएंसी है? यिन की। यिन की। सर इसमें दो कंडीशन देखी थी, मतलब कहीं पढ़ा था मैंने, इसके अंदर इसका एक्सप्लेन करा गया था कि जो माइग्रेन होता है, हाँ, जो हमारे लीवर से बाइल बनता है, हाँ, उसकी सीक्रेशन की वजह से माइग्रेन होता है जब उसका एक्सेसिव फ्लो होने लगता है। हाँ, ये मेरे को थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि बैक हेड से पेन आता है, और जब बिल्कुल भी बाइल सीक्रेशन नहीं होता, स्टॉप हो जाता है, तो फ्रंट से पेन जाता है। तो इसलिए उसको टू कंडीशन में डिवाइड करा था। आप हम क्यों जाएं मॉडर्न साइंस को इतना पकड़ने के लिए? हम क्यों जाएं बाइल से होता है या किससे होता है? सबको थोड़ी मालूम है। ऑल ऑफ अस पीसीएम में तो सर फिर ब्लड से दे रखा है कि ब्लड एक्सेस हो गया, डेफिशिएंट हो गया। नहीं, आप ये जो सिम्टम्स हैं जो अभी Yes, डॉक्टर sir. आचार्य ने बताया, ये सिम्टम्स कौन से हैं? यांग के है कि नहीं? एक्सेस ऑफ यांग है ना, बढ़ता भी है, स्पाइसी फूड से बढ़ रहा है, Yes, sir. टेंशन से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना? Yes. बढ़ रहा है ना? और दूसरी Yes. और क्या बात है? एक बात है ये आया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रहेगा और फिर चला जाएगा किसी न किसी उपाय से, और फिर आ जाएगा। ये क्या है? ये बता रहा है वुड की बात, ये बता रहा है विंड की बात, बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यस स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये यांग दिख रहा है तो या तो यांग एक्सेस है, अदरवाइज यिन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से यांग कंट्रोल नहीं हो रहा है। यस, दो ही बात है। क्या इसमें यिन एक्सेस हो सकता है डॉक्टर आचार्य? Yes, in liver fire can be excess. यिन में लिवर, यिन कहाँ? लिवर तो जब फायर बना रही है, लिवर की जो फायर है वही तो काम कर रही है, वही तो गड़बड़ कर रही है। तो या तो लिवर की फायर नॉर्मल है, लिवर के पास इतनी यिन नहीं है, यिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो फायर है वो राइज कर गई, ऊपर चली गई, वो खाली दिखता है कंपैरेटिवली। और या फिर ये एक्सेस है फायर की, क्योंकि लिवर स्वभाव से बाय नेचर लिवर प्रोड्यूसेस ओनली यांग ची। लिवर बिलोंग्स टू यांग फैमिली। सब याद करिए, हमने आपसे कहा था 2 फैमिली है, कौन सा? यिन फैमिली और यांग फैमिली। तो लिवर किस में है? यांग फैमिली में है, यांग फैमिली में। तो ये तो यांग बनाता ही है, तो यांग एक्सेस हो सकती है, यांग डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो अगर यांग एक्सेस होगी तो हम क्या कहेंगे? हीट राइजिंग, लिवर हीट राइजिंग या लिवर यांग राइजिंग। लिवर की यांग कहाँ है? गॉल ब्लैडर में है। लिवर यांग राइजिंग क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला, कंज्यूम करने वाला लिवर की जो में यिन नहीं मिल पा रहे, लिवर यिन बनाता ही नहीं है, लिवर के पास यिन की शॉर्टेज बहुत जल्दी हो जाती है। यांग की शॉर्टेज हो गई तो समझो सीरियस बात हो गई, लिवर बीमार हो गया। अभी वो चीज ऐसा बनाना चाहिए। लिवर में यांग की कमी हो सकती है, टोटल यिन और यांग की कमी नहीं होती लिवर की, टोटल ची कम नहीं होती, बहुत कम, रेयर, 99% टाइम टोटल ची कम नहीं होती, या तो यांग कम होता है या यिन कम होती है। यिन कम हो जाए ये स्वभाव है, नेचर है, हो सकता है, लेकिन यांग कम हो गया तो सीरियस मैटर है। जो व्यक्ति हमेशा हंसता बोलता खेलता कूदता रहता है, यांग है,
जिसकी प्रकृति यांग है वो अचानक चुपचाप बैठ जाए तो सीरियस है, लेकिन वो अचानक किसी चीज को तोड़ने लगे, गुस्सा हो जाए तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो यांग है, उसकी प्रकृति है। यिन उसके पास कमी हो गई, शांति नहीं। इस दृष्टिकोण से दो प्रकार की बात अगर हम लोग देखें तो एक हो सकती है यिन की डेफिशिएंसी और दूसरा हो सकता है यांग एक्सेस। Sir, last week में I had done 2 cases. माइग्रेन क्रॉनिक, उसमें मैंने खाली गॉल ब्लैडर ह्यूमिडिटी। तो माइग्रेन क्रॉनिक में पहले सिम्टम बताइए कि जो पेन उसको शुरू होता है जिस पेशेंट को, वो कितने दिन तक रहता है या कितने घंटे तक रहता है? ऑलमोस्ट 7 to 10 days रहता है। 7 to 10 days। फिर वो कोशिश कर करके थक के किसी तरह कम होता होगा। या और फिर उसको कितने दिन के बाद अटैक आता है? ऐसे इन अ मंथ आफ्टर 21 days। लगभग 3 वीक के बाद में आता है, जाता है, आता है, जाता है। He has to take some allopathic medicines to get relief of the pain, and it actually subside, doesn't get removed. If you see the face of that person, if he takes the analgesic, the pain subsides, but actually doesn't give the complete removal of the pain. And in this case, what I have done actually gallbladder humidity sedation, dryness sedation, and wind turbulation, and the immediately results came. क्यों हुआ ऐसा? ह्यूमिडिटी इन द गॉल ब्लैडर इज वेरी यंग। Yeah. लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ में अगर आपने ड्राइनेस कर दिया तो दैट बिकम्स वेरी यिन। ह्यूमिडिटी विद ड्राइनेस इट बिकम्स यिन। और आपने यिन को सेडेट कर दिया है यहाँ। Yeah. मेरा कहना यह है कि यू शुड कीप ए वॉच ऑन दिस पेशेंट, है ना, कि कितने दिन तक इसको रिलीफ रहता है। Sir, I remember one case I had done 15 years back, a case of migraine, almost for 10 years. Now, with the same treatment, he had relief for 10 years. For 10 years? Yeah, he came after 10 years. कि डॉक्टर साहब आपने जो ट्रीटमेंट दिया था, 10 साल के बाद मुझे माइग्रेन का अटैक है। 10 साल के बाद। I was surprised. Wonderful. Because he was taking migraine, propranolol, and all allopathic medicines. He was not getting relief. He came, it was 10 years back, and he said, "Can you do it again?" Because the first time I got this. देखिए, माइग्रेन का एक और कारण हो सकता है। एक हो सकता है ब्लड की डेफिशिएंसी। क्या हो सकता है? अगर ब्लड की डेफिशिएंसी हो तो भी हेडेक होगा। लीवर इज ए ग्रेट स्टोरेज। Large amount of blood is always stored in the blood, in the liver. अगर ब्लड कम हो जाए तो क्या होगा फिजियोलॉजिकली? ऑक्सीजन कम पहुंचेगा ब्रेन में। सर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी ब्रेन में। नहीं, अगर ब्लड कम हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल कम होगा। नर्व्स सारी ड्राई हो जाएंगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। किसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा? नर्व्स को। नरिशमेंट यिन है कि यांग है? यिन है। तो जब आप लिवर में ब्लड की मात्रा बढ़ाएंगे, है ना, व्हेन यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन लिवर, कैसे बढ़ाएंगे? स्टे टाइम, रेसिडेंशियल टाइम ऑफ द ब्लड इन लिवर शुड बी इंक्रीज्ड, राइट? तो ये जो डॉक्टर ममता बता रही हैं कि राइट एंड लेफ्ट, तो याद रखिए कि जब लेफ्ट टेम्पोरल हेडेक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज ड्यू टू ब्लड। व्हाई? बिकॉज जो लेफ्ट में है आर्च ऑफ ऑर्टा और वहां से ब्लड वेसल ऊपर की तरफ जाता है, तो सबसे पहले अगर ब्लड की डेफिशिएंसी से कुछ होगा तो लेफ्ट में प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट टेम्पोरल हेडेक अगर होता है, डॉक्टर ममता, दिस इज फॉर यू, नोट कर लीजिए, लेफ्ट टेम्पोरल हेडेक इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन लिवर। या आई सेड इट उल्टा, आई थिंक। और राइट है तो क्या है? हाँ, दैट इज डेफिशिएंसी, इट इज डेफिशिएंसी। और दोनों साइड है तो दिस इज एक्सेस।
राइट में है तो यिन की डेफिशिएंसी, लेफ्ट में है तो ब्लड की डेफिशिएंसी, बोथ आर डेफिशिएंसी, बोथ इज डेफिशिएंट कंडीशन, एक साइड में है। और जब दोनों साइड में हो जाता है या एक साइड से शुरू करके दूसरे साइड तक फैल जाता है तो दिस कैन बी एक्सेस। और ऐसे केस में क्या होगा, आंखों में भी दर्द होगा, गर्दन में भी दर्द होगा, नहीं? तो ये सब जब हो तो इसके मतलब क्या है, लिवर यांग राइजिंग, लिवर यांग राइजिंग में यांग को सेडेट करना चाहिए और डेफिशिएंसी में जिस चीज की डेफिशिएंसी है उसको डोनेट। लेकिन डॉक्टर आचार्य ने कुछ और बात कही है which we should try to understand. प्लीज म्यूट करो सब लोग। सर आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं हमारी आवाज नहीं, हमारी किसी ने आवाज से हाँ अभी म्यूट किया सबने। यस सर, म्यूट करके रखिए, जब जरूरत हो तभी अनम्यूट करके दो। Dr. Acharya is giving us something new, so I shall request Dr. Acharya to please explain how you reached this conclusion. क्योंकि आपने क्या किया है, विंड को टोन किया है, यस, और आपने ड्राइनेस और ह्यूमिडिटी को सेडेट किया। या करेक्ट। ऐसा क्यों, क्या सोच के किया? This is because it is temporal. It is basically a meridian wise. It is gallbladder meridian. First thing. Gallbladder meridian, correct? Yes. So you selected gallbladder meridian. That is also Yes. correct. And there is a pain, which is throbbing nature. Throbbing. Pain again, humidity and dryness. इसलिए आपने उसको आपने कम किया कि ज्यादा, उसको कम किया? Sedate humidity, sedate dryness, 25 minutes. ठीक है, देखा इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सीधा सीधा सिम्टम का ट्रीटमेंट डाला, मेरिडियन वो सेलेक्ट किया जो जाता है वहां, और इन्होंने सीधे सीधे सिम्टम को किया। So within 15 minutes the pain came down. कितने दिन पहले किया है ये ट्रीटमेंट? ये मैंने 5 दिन पहले किया है, 5 days back. अच्छा, so how many treatments you gave? 5 days. 5 days. Continuous, daily? Continuous daily. So now she is all right, she or he? She is perfect. She was not getting the sleep. She got the sleep. The pain subsided. The vomiting part subsided. Okay. Vomiting के लिए तो humidity, humidity आता है इसमें, vomiting में humidity आता है. So acidity part also came down because the migraine associated with gastritis, the vomiting sensation, sometimes vertigo, sometimes eye pain. So these symptoms all subsided with this treatment. This is not only one case. This I have done this within this week. This is the third case I have done. Please keep a record because this seems to be little inexplicable to me. But you keep a record and keep a check that. Yes, I will keep a follow up of this patient because we take a phone number and then ask. But patient doesn't come to us once he gets. No, patient may not come. So you just take. Patient may not come. So every month we ring them. Monthly once you can just monthly call once. 1 or 2-3 months if you keep a track. That's enough. Yeah. Okay. So now if you have any other question, anyone else? So मैंने एक psoriasis केस जो पता है दिया था आपको. नहीं, not psoriasis. Now let us not go case wise. Let us go for yes, Vijay. Sir, has he done this treatment with magnets or needles? Needles. So actually this is actually usually we do opposite and we get the result. So this is what I feel is the points are getting stimulated and result is coming. यही हो रहा है. That is what I also think because needle को इन्होंने जैसा डाला है, तो उसको stimulate नहीं किया होगा. जी. तो क्या हुआ, वो stimulate हुआ, वो जैसा जाना चाहिए चीज को वैसे चला गया. बस उतना ही हुआ. Body decided. Body decided what to do. Yes. There are some scholars who say that there is no difference in which angle you put the needle.
Yeah. ऐसे scholars हैं. Yes. So this is what Yeah. is happening. But theoretically speaking, you should know that either it is deficiency or it is excess. Yeah. Deficiency means deficiency of yin only. It cannot be a deficiency of yang. Yang. Here what he has done, he has increased yin. So actually increase yin नहीं हुआ. अरे sorry, decrease yin नहीं हुआ, increase yin हुआ. Yes. तो आपको भी ऐसा रिजल्ट मिला होगा, because you are also a Suzhou man. Vijay is a licensed teacher of Suzhou, Dr. Acharya. This Vijay Saigal, and Dr. Acharya is also a master of Suzhou. So both of you are here. Okay. And a very Sir, what actually works is your intention. Very important thing, intention. Very important. So important if the first needle was humidity, or the first needle was dryness, that makes a great difference. Yes, that is intention is very important in Suzhou. Very important. पहला needle कौन सा डाला आपने? Yeah. तो पहला needle अगर humidity डाल दिया आपने, yeah, तो हो गया काम. काम हो गया. कुछ करने का नहीं, है ना? और अगर पहला आपने dryness डाल दिया तो क्या होगा? yin tone होगा. हाँ, yin tone ये जो 10 दिनों तक जो पेन रहता है ना, डॉक्टर आचार्य, yeah, this is because the nerves are getting dried and paucity of nourishment. yeah. सर नर्व सूख रहे हैं. सर सीधे सीधे K1 नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, खूब कर मतलब इतना घूम के हम क्यों जाएं, सीधे सीधे K1 कर लें. बीजी मेरिडियन मालूम है तो कर सकते हैं. So, but I'm doing this Suzhou ज्यादा. Chinese बहुत कम. नहीं ठीक है. Here we are not discussing BG Meridian. We are not discussing anything. We want to concentrate on 5 element theory. 5 element में सबसे important क्या है? Understanding of yin yang. That is the first condition. So therefore we should try to understand what is yin and what is yang. Right? दूसरा एक और केस आपको हम बताते हैं जिसमें yin yang में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. हार्ट में एक कंडीशन आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. सर इसमें यांग की कमी है. वेरी गुड. यांग की कमी है. आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं. आई वाज आल्सो, क्योंकि जो साइज बढ़ गया डजंट मीन इट इज यिन, इट इज यांग की कमी. इसके वजह से साइज किसी भी ऑर्गन का बढ़ जाए, याद रखिए दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ यांग. चाहे वो लिवर की साइज बन जाए, हेपेटोमेगाली हो जाए, चाहे स्प्लेनोमेगाली हो जाए, हाइपरट्रॉफी. एक बार मैं दिल्ली में था विनीता जी के यहाँ. I was teaching at Vinitaji's place in Delhi, and Dr. Mamta was in the class, and she brought up a case of BHP, I think, isn't it, Dr. Mamta? Your father-in-law or someone? Yes, sir. Yes, sir. Prostate hypertrophy. I asked her, benign prostate hypertrophy. Is it hypertrophy? You are sure? Because many people also just conclude, no, this is excess of yin, some deposit, fatty infiltration is yin excess. It's not so. Whenever there is hypertrophy, meaning thereby enlargement. Yeah. क्या हो गया? What is it? Yang deficiency. Why yang deficiency? Because yang has been totally consumed. Yin consumes the yang. That is true. So yang has been consumed. So yang when gets consumed, that means what has happened? Yang is less than required. So the treatment lies, तो चाहे वो कहीं की भी हाइपरट्रॉफी हो, मेगाली हो, क्या करेंगे हम लोग? यांग बढ़ाएंगे. यांग बढ़ाएंगे. याद रहेगा. और जो आज विजय जी ने जो बात कही है डॉक्टर आचार्य, I would request you to study this and please confirm for all of us. What Vijay said is something revolutionary. Revolutionary in the sense कि आप ट्रीटमेंट उल्टा कर रहे हो.
रिजल्ट आपको सीधा मिल रहा है. Yes. Vijay, do you have such experience in some other case? Vijay, he has left. Yes, no, I am here, sir. हाँ, आपका एक्सपीरियंस है कुछ ऐसा? हाँ, experience है, sir. When I am a bit doubtful, what I do is I put straight needles. I am sure about the point, and no, when I am doubtful about the yin and yang, I insert straight needles. लेकिन इन्होंने तो इंसर्ट एंगल में डाला है. What it's not giving full direction, no, sir. It's hardly 20 minutes, and you are stimulating it. It is like not even 20 minutes. It direction तो बहुत मामूली 10 minutes. I'm depending. It is what I feel is, sir. When you are inserting a needle, it is like you are putting a pebble in a water pond, and the waves goes all around. So similarly here also. No, sir, 1 minute. So this is either you treat, depends on which hand, right hand or left. Left is yang, right is yin. Again, you have to change the directions. This I don't know. Yeah, of course, the circulation, if you see the circulations, left is always yang. Right is left is yang, but the meridians are same, no? Doesn't matter. But in the same direction. No, one is anti-clockwise, other is clockwise direction of energy that flow. Is true. That is energy flow. Clockwise yes. and clockwise. Yes. Yes. Depends. Sometimes we find the difference between the left and right. But what Vijay is saying that he also had such encounters with some patients where but what he did was that he rented it. It means he put straight needles and he got the results. What you are saying is that you put the needle with intention of yin sedation. Yeah. Maybe you thought that yin is less, but what I tell you is that it is not less. Yin is not less. All the symptoms which you are talking about migraine, do you think is there anything yin? Yeah, नींद नहीं आ रही है. If he is not able to sleep, is it deficiency of yin or excess of yang? Excess yang. ऐसे deficiency of yin होगा. अगर deficiency है तो आप तो yin को sedate कर रहे हो, means what? Yang will further increase. So in what logic you are giving and what treatment you gave, they are two entirely different things. So I would suggest that you keep a note of what Vijay has said and see and study, and more patients you can study and find out and come up with some revolutionary logic. See, in this case, sir, if the symptoms again he gets the symptoms after, so if it is yang treatment, then we go to liver, because liver yin will give the proper result. If the symptoms repeat. Yes, in fact, if I were there, I would have treated liver meridian and not the yang meridian, that is not the gallbladder meridian. Gallbladder meridian can help, but here because it is a temporal pain and the meridian is gallbladder meridian immediately, right? Yeah. So what you should have done, you can liver fire should work. Liver fire. It should work. Liver fire, that should give permanent relief. No, not liver. There can be two things: either yang rising or yin deficiency. Blood I am counting as nourishment means yin deficiency. So it can be blood deficiency, it can be yin deficiency, it can be yang rising. There are only three possibilities. But what you did has surprised me, and therefore I broached this subject in presence of you and Vijay. Both of you are here, and both of you are good practitioners of Sujo. Hey, Mamta, what do you say? You must have come across with a lot of migraine patients. Dr. Mamta? No, sir, I don't. Actually, I've always treated as yang rising only. So I have sedated liver yang rising. It gives immediate result. Yes, it gives immediate. Either yang rising or I have never failed in migraine. Never ever. But I have done only this, what Mamta is saying. Either if it is yang rising, sedate yang. And if it is yin deficiency, tone yin. And then because gallbladder is what? Is controller of liver. Feedback.
लिवर बीइंग जेनरेटिव ऑर्गन। तो बहुत अच्छी तरह यिन यांग को समझना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज 5 एलिमेंट थ्योरी, राइट। दूसरी क्या चीज है 5 एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वंस यू हैव अंडरस्टूड यिन एंड यांग, then the next thing is what you should know is that kidney has a very special role to play. Always you will not get such simple cases. Remember, kidney is a great storage of everything more or less. कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो किडनी में स्टोर्ड है? ओरिजिनल की, फंक्शनल की एंड बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स, फंक्शनल ची एंड ओरिजिनल ची। बॉडी फ्लूइड्स कहां से आ रहा है, जनरेट कहां हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है स्टमक में। फंक्शनल ची कहां जनरेट हो रहा है? लंग्स में। लंग्स में। और ओरिजिनल ची कहां जनरेट हो रहा है? किडनी में। और ये तीनों चीजें अगर एक साथ में आपको डालनी हो तो किसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए? किडनी की। तो याद रखिए कि 5 एलिमेंट में जब आप काम करते हैं तो हर मेरिडियन को कोई ना कोई फीड करने वाला है। कौन फीड करता है हर मेरिडियन को? उसका ऑर्गन। और हर ऑर्गन को फीड करने वाला कौन है? एक है किडनी और दूसरी है मदर। तो दूसरी कौन सी? मदर ऑर्गन। मदर लंग्स। नहीं, हर एक का अपना मदर। हर ऑर्गन का मदर। हर ऑर्गन की अपनी मदर है ना, हर ऑर्गन की मदर है। ओके। किडनी की मदर लंग्स है, लंग्स की मदर स्प्लीन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मदर से कुछ ची आती है ना, फंक्शनल ची होती है। वो कौन सी ची होती है? फंक्शनल ची होती है। तो ओरिजिनल ची, फंक्शनल ची और बॉडी फ्लूइड्स, ये 3 चीजें एक कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन 8 कैटेगरीज में कहां रखी हुई है? ईओवी में। ईओवीज में रखी हुई है। तो लिहाजा सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईओवी करना चाहिए। हाँ, अगर मान लो 10 साल की, व्हाट ही सेइंग, डॉक्टर आचार्य सेइंग 10 years old या 20 years old माइग्रेन, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले किडनी की ट्रीटमेंट, अर्थात पहले ईओवी की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। नहीं, जब ईओवी की ट्रीटमेंट कर ले, बाकी जो बचा है वो लिवर गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट करें। ठीक है ना? Will you suggest something in Sujok? How can do you? Why not? Points are same, no? You can use in Sujok. No problem. You should know which couple to select. तो टेम्पोरल हेडेक में we always select TW5GB41. याद रखिए, टेम्पोरल हेडेक में क्या सेलेक्ट करना चाहिए? TW5GB as per rules. You must take the blood pressure also into. आप if you are a good therapist, माइग्रेन की ट्रीटमेंट सिंपली शुरू नहीं कर देना चाहिए। You must know the gall क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, नहीं? और अगर आपको लगता है ब्लड, क्योंकि गॉल ब्लैडर मेरिडियन में देयर इज नॉट मच ऑफ ब्लड, मच ऑफ ब्लड इज वेयर? इन द लिवर। गॉल ब्लैडर में ज्यादा ब्लड नहीं है। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है, इसका क्या मतलब है? ब्लड की पॉसिटी है, नहीं? दैट ऑल्सो सजेस्ट, ये भी सजेस्ट करता है कि लिवर की ट्रीटमेंट करो, क्योंकि ब्लड लिवर में है ज्यादा, गॉल ब्लैडर में कहां है? वो कह रहा था ना कि बाइल की वजह से होता है। बाइल कौन जनरेट करता है? लिवर जनरेट करती है। और गॉल ब्लैडर क्या करता है? उस बाइल को कंसंट्रेटेड फॉर्म में बना लेता है। ठीक है? तो दूसरी चीज हमें यह याद रखनी चाहिए, किडनी वाली। और किडनी में हमारे पास 2 किडनी है, एक वाटर किडनी है और एक फायर किडनी है। अगर इनकी कमी हो गई तो वाटर किडनी,
और यांग एक्सेस है तो भी वाटर किडनी नहीं, वाटर किडनी की तरफ ही हमको जाना चाहिए, ठीक। और बिकॉज TW5 इज ऑल्सो लो कनेक्टिंग पॉइंट, सो जिस एक तरफ पेन हो रहा है उसके अपोजिट साइड में TW5 लगाना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर देख के TW5 और GB41 जैसा मैंने रूल में बताया हुआ है उस तरह से लगाना चाहिए, नहीं? और उसके बाद आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर यांग राइजिंग है तो गॉल ब्लैडर की ह्यूमिडिटी को सेडेट करना होगा, और अगर गॉल ब्लैडर की ह्यूमिडिटी को सेडेट करते हैं तो दूसरा कौन सा पॉइंट सेडेट करना चाहिए? लीवर 3, क्योंकि लीवर की ह्यूमिडिटी कहाँ है? लीवर 3 पे है कि नहीं? तो अगर लीवर 3 को आपने सेडेट किया इसके मतलब ह्यूमिडिटी वैरायटी कम होगी। ह्यूमिडिटी दो प्रकार की है ना, यिन ह्यूमिडिटी, यांग ह्यूमिडिटी। यांग ह्यूमिडिटी गॉल ब्लैडर 34 पे है, यिन ह्यूमिडिटी, तो जनरेशन कहां से हो रही है? लीवर 3 से। तो अगर जनरेशन 10 साल से है, लीवर 3 को सेडेट करना ही चाहिए, वन ऑफ द पॉइंट्स। तो आपको ये पता लग गया कि किडनीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इन 5 एलिमेंट व्हिच कम्स इज किडनी इज इंपॉर्टेंट। यिन यांग को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा क्या है ये समझ। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो 5 एलिमेंट थ्योरी में आती है वो ये आती है कि ट्रांजिशनल फेज जो है अर्थ, ये फेज यांग मेरिडियन पर यांग है और यिन मेरिडियन में यिन है। इसके मतलब अगर ड्राइनेस के साथ ह्यूमिडिटी आ गई तो यिन हो गया, और हीट के साथ ह्यूमिडिटी है तो यांग है। याद रहेगा है? ये याद रहेगा। कभी यिन बढ़ानी हो तो ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस को टोन करना चाहिए, यांग बढ़ानी हो तो हीट और ह्यूमिडिटी को टोन करना चाहिए। ची बढ़ानी हो कहीं भी, ची जनरेशन डायगोनल में, तो क्या करना चाहिए? हीट और ह्यूमिडिटी यिन साइड में। ची को बढ़ाएगा कौन? जनरेट कौन करेगा? क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप यू हैव टू गो टू द यिन मेरिडियन। और जब भी कोई बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम आ जाए तो याद रखना जनरेशन हैज टू बी एंश्योर्ड। नहीं, आप यंग मेरिडियन में ट्रीटमेंट करोगे, इट विल बी ओनली सुपरफिशियल ट्रीटमेंट, मे नॉट लास्ट लॉन्ग। हमेशा ऐसे केसेस में ट्राई करना चाहिए अनलेस द फू ऑर्गन, जो हॉलो ऑर्गन है वही खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आपको लेना ही पड़ेगा उसको। लेकिन उसको भी सपोर्ट कौन करेगा? यिन ऑर्गन, क्योंकि यिन ऑर्गन ही यांग ऑर्गन को ची देती है। 5 एलिमेंट में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। जनरेट कौन कर रहा है? सॉलिड ऑर्गन, नहीं वही डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये दो बातें तो ये हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट बात है 5 एलिमेंट में वो ये है कि आपको सेडेशन और टोनिफिकेशन की बात करनी चाहिए। तो दो तरह के सर्कुलेशंस हैं। एक सर्कुलेशन को कहते हैं सबजुगेशन साइकिल या कंट्रोल साइकिल या डिस्ट्रक्टिव साइकिल, और दूसरे को कहते हैं इंसल्टिंग साइकिल या एंटी सबजुगेशन साइकिल। ये जब हम एक तरफ यूज करते हैं, चाहे वो एक मेरिडियन में यूज करते हो, वर्टिकल मेथड में यूज करें तो वर्टिकल मेथड में एक सिंगल मेरिडियन, या हॉरिजॉन्टल मेथड में यूज करें और केवल यिन मेरिडियंस में यूज करें, या केवल यांग मेरिडियन में यूज करें, तो दैट विल रेगुलेट व्हाट? दैट विल रेगुलेट द मेकअप ऑफ द ची जनरेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। माने क्वालिटी, क्या चीज रेगुलेट होगी? क्वालिटी। लेकिन मान लो आपने लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों मेरिडियन को ट्रीट किया, तब क्या चीज रेगुलेट होगी? क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी भी रेगुलेट होगी। तो जब कभी 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, 5 साल पुराना केस आए तो आप ये कोशिश कीजिए कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर रेगुलेटेड।
अब सबसे बड़ा जो नियम है 5 एलिमेंट का, वो क्या नियम है? वो नियम ये है कि अगर आप यांग फोर्स को रेगुलेट करना चाहते हैं तो यू शुड यूज कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल माने डिस्ट्रक्टिव, याद रहेगा। क्रॉनिक पेशेंट्स में किसी भी एलिमेंट के दोनों मेरिडियंस को ट्रीट करना उचित होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो ये माइग्रेन बता रहे हैं 10 साल की, हम क्या चाहेंगे? लीवर भी कम से कम 1 पॉइंट तो यूज हो, नहीं? क्योंकि आपने अभी ट्रीटमेंट कर दिया, लिवर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ गया, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो कुछ भी आप करेंगे ची कहां से आएगी? लिवर से ही आएगी। लिवर से आएगी और किडनी से आ सकती है, नहीं? तो किडनी को नहीं भूलना है, इसको नहीं। अब नियम ये बिल्कुल पक्का नोट करके रखिए कि अगर यिन को रेगुलेट करना है तो इंसल्टिंग साइकिल यूज करेंगे, नहीं? ठीक है। और अगर यांग को रेगुलेट करना है तो यांग को रेगुलेट करना है तो क्या करना होगा? कंट्रोल, रेस्ट्रिक्टिंग, सब्जुगेशन। कंट्रोल यांग को रेगुलेट करना है तो हमें सब्जुगेशन साइकिल या कंट्रोल साइकिल यूज करना चाहिए। और ये क्या करेगी? क्वालिटी को रेगुलेट करेगी। लेकिन जब दोनों मेरिडियन आप यूज करेंगे तब क्या होगा? क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों रेगुलेट होगी। ये याद है ना सबको कैसे करते हैं हम लोग? इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। दोनों चीज याद रखिए, ठीक? ठीक है। यिन को रेगुलेट होना है तो एंटी सब्जुगेशन, यांग को रेगुलेट करना है तो सब्जुगेशन मेथड यूज करते हैं। तो याद रख लीजिए, अगर क्रॉनिक है तो अगर यांग में भी प्रॉब्लम, मान लो लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, you should not forget to treat lungs also। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब एक महत्वपूर्ण बात रह गई। इतनी बात हम लोगों ने 5 एलिमेंट में अच्छी तरह से सीखी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में ची, प्राण जो है वो लगातार सर्कुलेट कर रही है, नहीं? तो 50 साइकिल लगाती, 24 घंटे में कितने साइकिल? 50 साइकिल्स। तो 25 बार ची यिन मेरिडियन से चल रही होती है और 25 बार यांग मेरिडियन से चल रही होती है। ठीक है? ठीक है ना? तो यिन और यांग मिला करके एक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है? तो जिस समय यिन चल रही होती है एक तरफ राइट में, तो यांग चल रही होती है लेफ्ट में, और यांग चल रही होती है राइट में तो यिन चल रही होती है लेफ्ट में। ये ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की हमें ट्रीटमेंट कहां करना है? मेरिडियंस में करना है। मेरिडियंस क्या है? सुपरफिशियल कैरियर ऑफ ची। और जितना भी काम हम करते हैं, चाहे अपने बॉडी से चाहे अपने माइंड से, इस सारे काम के लिए ची कौन देता है? मेरिडियंस से। मेरिडियंस प्रोवाइड यू द ची फॉर एवरी काइंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क। तो अब क्या है कि लंग्स से जनरेट हुई ची और लंग्स से फंक्शनल ची चली और चल के लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर एंड लिवर एंड बैक अगेन टू लंग्स। ये चीज याद है सबको? सुपरफिशियल सर्कुलेशन सबको याद है? तो अब क्या हो रहा है? एक साइकिल, मतलब चेस्ट रीजन से ची चली लंग्स से और वापस इसी रीजन में आ गई,
उसको बोलते हैं एक कंप्लीट फुल साइकिल। 4 मेरिडियन से एक साइकिल बनती है। खूब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इतना जितना आपने अभी तक सीखा वो सब क्या है, सब बेसिक है। अब जो मैं बता रहा हूं ये क्या है, दिस विल मेक यू ए स्किल्ड थेरेपिस्ट। नहीं, डोंट बी हैप्पी बाय कोई आया पेन लेकर के, उसमें आप अगर अभी अभी पेन हुआ है शुरू 7 दिन 8 दिन 10 दिन का है, ठीक है, एक मेरिडियन में हो गया काम हो। कोई 10 साल से पेन लेकर के आ रहा है, डोंट रिलाई ऑन दैट। क्यों? क्योंकि एक मेरिडियन की चीज दूसरे मेरिडियन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 12 की 12 मेरिडियन में ची सर्कुलेट हो रही है। तो किसी एक मेरिडियन में कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई इन्फेक्शन आ गया या कोई रुकावट आ गई, some occlusion or something like that, something has happened, yang has got excess or yin has become less or whatever has happened. So the meridians which are following it, जो दूसरे मेरिडियन इसके बाद आने वाले हैं, वो इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे सर। तो अगर 4 मेरिडियन का एक साइकिल बनता है, तो एज ए स्किल्ड थेरेपिस्ट आपको हमेशा, मान लो गॉल ब्लैडर में मेरिडियन में आपको प्रॉब्लम दिख गई, अब गॉल ब्लैडर मेरिडियन में कौन सा साइकिल है? फर्स्ट साइकिल, सेकंड, थर्ड साइकिल, थर्ड साइकिल है। कौन सा? पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर एंड लिवर। तो अब अगर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है नहीं, तो ये लिवर में भी हो सकती है प्रॉब्लम, ट्रिपल वार्मर में भी हो सकती है प्रॉब्लम, हो सकती कि नहीं हो सकती? और याद रखो, इसके पहले वाली साइकिल कौन सी थी? इसके पहले वाली साइकिल थी हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड किडनी, है ना? तो हो सकता है कि ये वहां कनेक्शन हो, या हो सकता है कि ये जो तीसरी साइकिल है इसके बाद कौन सी साइकिल आने वाली? पहली साइकिल आने वाली, लंग्स वाली, लार्ज इंटेस्टाइन वाली। हो सकता है कि उस पेशेंट की प्रॉब्लम सिर दर्द सबसे ज्यादा है, ही विल नॉट डिस्कस एनी अदर थिंग। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, जिस साइकिल का मेरिडियन है उस साइकिल को तो देखना ही देखना चाहिए। देखो, दिस इज मेकिंग यू ए स्किल्ड थेरेपिस्ट। दिस विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी थेरेपिस्ट एंड यू। ऑर्डिनरी थेरेपिस्ट इस बात को ओवरलुक करता है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन में प्रॉब्लम है, उसकी ट्रीटमेंट कर दिया, हो गया काम। नो, क्या करना चाहिए? गॉल ब्लैडर मेरिडियन में ची कहां से आ रही है? लिवर से। तो अगर डीप ची की बात है तो लिवर की ची गॉल ब्लैडर में आ रही है, और सुपरफिशियल ची की बात है तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन से लिवर मेरिडियन में जा रही है। एक और बात, यिन ची लिवर में और पेरिकार्डियम में एक साथ फ्लो होती है, और यांग ची ट्रिपल वार्मर में और गॉल ब्लैडर में एक साथ फ्लो होती है। तो अगर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप केवल यांग को ही अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो ट्रिपल वार्मर एंड गॉल ब्लैडर दोनों की ट्रीटमेंट तो कम से कम करनी ही चाहिए। समझ में आ रही बात? तो पूरी यांग ठीक हो जाएगी तो दूसरा पार्ट उसका यिन है। साइकिल कैसे चल रही है? यांग वाली ची नीचे आ रही है और यिन वाली ऊपर जा रही है। तो जिस समय वो ऊपर से नीचे आ रही है यांग, उसी समय यिन वाली नीचे से ऊपर जा रही है। तो अगर इसमें गड़बड़ी है तो इसमें भी गड़बड़ी हो नहीं, क्योंकि क्या है? इसलिए है कि बिकॉज देयर आर टू प्रोसेसर्स। एक प्रोसेसर है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म, जो कहां इंस्टॉल्ड है? आपकी बॉडी में इंस्टॉल्ड है, और एक प्रोसेसर है आपका हेड। ये दो प्रोसेसर हैं, इस बात को बहुत से लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। नहीं, अगली क्लास जो हम लोग लेने वाले हैं लॉन्ग मेरिडियन की, उसमें हम लोग इन दोनों प्रोसेसर की बात करेंगे। ठीक, तो सिर में जो निकला
तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन में यांग ची है। यांग हल्की होती है कि यिन हल्का होता है? यांग हल्की होती है। यांग हल्की होती है। तो ये ऊपर से नीचे क्यों आ रही है? सिर से पैर की तरफ ची क्यों आ रही है? कौन बता सकता है? कोर्डनेस होती है ना सर उसका, वो लियो कनेक्टिंग लियो जो होता है ना, ना। पंप भेज रहा है इसलिए। जो बॉडी का ये बातें हम लोग अगली क्लासेस में करेंगे। लॉन्ग मेरिडियन की अगली क्लास है। वी आर कीपिंग क्लास ऑन लॉन्ग मेरिडियन एंड वी विल सी। तो बॉडी पोस्चर के हिसाब से जैसे डाउन होते हैं तो यांग नीचे क्यों? नहीं, I'll tell you. Don't worry. ये तभी एक्सप्लेन होगा जब आप हेड को एक प्रोसेसर मान लेंगे। और फिजियोलॉजिकली भी हेड एक प्रोसेसर है। दिस आई विल टेल यू एंड लेट यू नो। सो कंडेंसेशन होता है इसमें सर? हाँ, yes, you are right. Condensation in the Yes, there are sinusoids inside the brain. Yes. Condense and becomes heavy and Very flows to good. the other side. Very good. Not the same side, to the other side. Because वहां सब साइनसेस है ना? तो ये it is like a water vapor. हाँ, yes. It condense. When it condenses, it comes down. Yeah. है ना? तो फुट में आकर के ये सब क्या हो जाता है? यिन हो जाता है। और जब ऊपर है तो ये क्या है? यांग है। अब क्या हो रहा है? अगर यांग नीचे नहीं आ पा रही, माने क्या हो रहा है? कंडेंस नहीं हो पा रहा। तो कंडेंस ऊपर गॉल ब्लैडर की जो ची है वो कंडेंस कैसे होगी? यिन मिलना चाहिए उसे कि यांग मिलना चाहिए? यांग मिलना चाहिए सर। यिन मिलना चाहिए। हाँ। इसलिए जब डॉक्टर आचार्य ने एक्सप्लेन किया तो मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है ना? तो अगर यांग बढ़ गई है, अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो यांग को, तो वो उसके लिए लिवर पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जनरेट कौन कर रहा है? लिवर जनरेट कर रहा है। तो गॉल ब्लैडर में तो कम करो, लेकिन साइमल्टेनियसली लिवर को भी आपको ट्रीट करना होगा। जनरेशन वहां से हो रही है, गॉल ब्लैडर में ची आती कहां से है? लिवर से आती। तो सिंपली आप उसको ट्रीटमेंट दे दिया, उसका पेन कम हो गया। डोंट गेट स्पेसिफाइड। दिस इज एन ऑर्डिनरी थिंग दैट यू आर डूइंग। स्किल्ड पर्सन क्या करेगा? कम से कम 2 मेरिडियन, यांग मेरिडियन इन्वॉल्व है तो 2 मेरिडियन। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसका पार्टनर भी इन्वॉल्व है तो कैसे करना चाहिए? पेरिकार्डियम और लिवर को भी ट्रीट करना चाहिए। ट्रिपल वार्मर गॉल ब्लैडर को भी ट्रीट करिए और लिवर और पेरिकार्डियम को भी ट्रीट करिए। नहीं, जिस तरह से लिवर और गॉल ब्लैडर आपस में कपल्ड मेरिडियन है, उसी तरह लॉन्ग मेरिडियन भी कपल्ड है। शाओयांग एंड जियुइन, ये दोनों कपल्ड हैं। इस बात की चर्चा चाइनीज ने नहीं की। शाओयांग को शाओयिन से तो जोड़ा, शाओयांग का ही शाओयिन वैरायटी थी, केवल नेचर अलग है, एक यिन है एक यांग है, लेकिन उसके जो नेचर है, ओवरऑल नेचर जो है ची का नहीं। तो जब व्हेन यू से शाओयिन एंड शाओयांग, क्या डिफरेंस है ची में? कौन बता सकता है? There are 2 long meridians. One is Shaoyin and the other is Shaoyang. The qi flowing in Shaoyin and the qi flowing in Shaoyang. What is the difference? कौन बता सकता है? Yes, Avinash, you want to say something? मतलब शाओयिन मतलब वो एक में यिन कम रहेगा और एक में यांग कंपैरेटिव कम रहेगा। नहीं, या उनका ची और ब्लड का जो कुछ है। नहीं, मैं बताता हूं। सेम ची यिन और यांग, यिन और यांग दोनों की इंटेंसिटी यांग के टर्म्स में ही मेजर करते हैं, ये तो मालूम है आपको? यस। तो शाओ, जो वर्ड शाओ है, दैट इज इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ ची। शाओ यिन में यांग कम है, शाओ यांग में यांग ज्यादा है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ ची इन शाओ यिन
is less and intensity of the same qi in Shaoyang is more. Yeah. However, जो रिलेशनशिप लीवर और गॉल ब्लैडर में है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में है, मतलब कपल्ड मतलब one is the brain, the other is the function, controller and controlled. ये रिलेशनशिप शाओयांग और शाओयिन में नहीं है। जो रिलेशनशिप लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में है, वो रिलेशनशिप शाओयिन और शाओयांग में नहीं है। नहीं। इसका मतलब क्या होगा? शाओयिन में जो ट्रीटमेंट होगी, अगर शाओयांग में भी वही सेम ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी, अगर कहीं और है। यांग अगर हमें ज्यादा चाहिए, उसी प्रकार की। लेकिन अगर इसकी जनरेशन को कंट्रोल करना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को कंट्रोल करना है, तो शाओयांग का कंट्रोलर कौन है? शाओयांग कपल्ड किससे है? जियुयिन से, नॉट शाओयिन। इस बात को चाइनीज नहीं देखा, या देखा भी हो तो हमारी ट्रांसलेशन वाली किताबों में नहीं है। ये बात हम आपको अगली क्लासेस में डिटेल में बताएंगे। तो आप लॉन्ग मेरिडियन में भी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अगर लॉन्ग मेरिडियन में करते हैं तो पूरी की पूरी साइकिल कंट्रोल हो गई, लेकिन नहीं हो गई। यस यस यस, आपने उसमें थर्ड पार्ट वो कंट्रोलर का जोड़ दिया। हाँ, जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? बराबर है। हाँ, तो उसमें वो कंट्रोलर हो जाए। ये रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग है। यस 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 यस। This will make you extraordinarily skilled therapist. सिर दर्द हो रहा है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक होगा ही। और उसको ठीक कर दिया तो उसके आगे पीछे वाले भी कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस होंगे। गॉल ब्लैडर में से आपने ऑक्लूजन निकाल दिया तो पूरी फ्लो करने लग जाएगी। लेकिन आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल दूसरे साइकिल से भी आगे वाली से या पीछे वाली से कम से अगर 10 साल की है तो 2 साइकिल जरूर से जरूर इफेक्टिव होगी। तो 2 साइकिल में कितनी मेरिडियन है? 8 मेरिडियन है। एक मेरिडियन तो आपने पहले ही नोट कर लिया कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन इज सिक मेरिडियन। ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन इट कैन अफेक्ट 7 मेरिडियंस, सो दिस मेरिडियन कैन बी ट्रीटेड थ्रू 7 डिफरेंट चैनल्स। कौन सा सबसे अधिक इन्फ्लुएंशियल होगा, उसको सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। सर इसमें एक चीज कर सकते हैं, हॉररी फ्रेंड्स गॉल ब्लैडर का हार्ट है। नहीं, देयर आर you see there was another fellow, चाइनीज ही थे वो, मास्टर तुंग। ओके। और एक थे डॉक्टर टैन, उनके स्टूडेंट ही थे। बाद में ही came up with lot of simplifications and theory part also. तो उन्होंने इन बातों को काफी डिस्कस किया, बट दे आल्सो मिस्ड दिस थिंग कि जिस तरह से कपलिंग है यिन और यांग मेरिडियन की, इंटीरियर एक्सटीरियर की, उसी तरह से लॉन्ग मेरिडियन में भी कपलिंग है। ओके। इस बात को नहीं मेंशन किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचर ऑफ ची देखा। तो नेचर ऑफ ची जो शाओयिन में था वही शाओयांग में था, लेकिन जो शाओयिन में था मतलब किडनी और हार्ट में जो चीज चल रही है वही चीज ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर में चल रही है। केवल डिफरेंस उन्होंने क्या देखा, एक में ज्यादा यांग है, एक में कम यांग है। तो ट्रीटमेंट जब करते हैं तो सेम ट्रीटमेंट शाओयिन और शाओयांग में होती है, लेकिन एक अगर राइट साइड में होती है तो दूसरे लेफ्ट साइड में, क्योंकि एक अगर यिन राइट में है तो यांग लेफ्ट में है, और यिन अगर लेफ्ट में है तो यांग राइट में। दिस विल मेक यू स्किल्ड थेरेपिस्ट। तो 5 एलिमेंट थ्योरी की जब बात करें तो आपको क्या देखना चाहिए, जिस साइकिल में जो मेरिडियन आपने सिक मेरिडियन आइडेंटिफाई किया है, उस साइकिल में क्या दूसरी मेरिडियन तो नहीं इन्फ्लिक्टेड है। हमेशा चेक कर, वो कहे या ना कहे, यू कैन फाइंड आउट, आप पता कर सकते हैं। जैसे अलार्म पॉइंट देख लो ना, उस ऑर्गन का अलार्म पॉइंट टच करके देख लो, टेंडर मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू ट्रीट।
ठीक है, तो हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड्स चाहिए, बॉडी फ्लूइड्स नहीं बन रही है तो स्प्लीन की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हो सकता है फंक्शनल चीज चाहिए तो लंग्स की ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए उस माइग्रेन वाले की, हो सकता है कि किडनी के पास सारा है हमने, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ईओवी की ट्रीटमेंट करना पहला। तो बहुत सी बातें अपने आप, बहुत से मेरिडियन, बहुत से ऑर्गन सारे अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो कोई भी क्रॉनिक पेशेंट हो या कैसा भी पेशेंट हो, सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ईओवी का ट्रीटमेंट करना। 5 एलिमेंट थ्योरी की ये बात याद रखना कि आपको कोई भी एक साइकिल जब आप लेते हैं तो आप देखिए ये जो 6 मेरिडियन हमारे पास है वो किस साइकिल में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस साइकिल में है, उस साइकिल में दूसरे कौन से मेरिडियन है, उसके ऊपर वाले में कौन से, नीचे वाले, ट्राई टू फाइंड आउट कि कहां कहां गड़बड़ हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक्यूपंक्चर वाले और एक्यूप्रेशर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक बार हमने ठीक कर दिया वापस वही प्रॉब्लम आ जाती है, वापस वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा देखना चाहिए जिस मेरिडियन को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो किस साइकिल में है, उसमें दूसरे कौन कौन से मेरिडियन, 4 मेरिडियन मिलकर के एक साइकिल बन रही है। तो एक मेरिडियन में गड़बड़ी हो गई तो आगे पीछे वाले मेरिडियन में गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यांग में गड़बड़ी हो गई तो पहले तो यांग को ही पकड़ लो, यांग यांग पकड़ लो, अगर यिन में गड़बड़ी हो गई तो दूसरे यिन को पकड़ लो, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड। पेरिकार्डियम एंड लिवर इज कनेक्टेड, ट्रिपल वार्मर एंड गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड। तो अगर हमें गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम मिल रही तो ट्रिपल वार्मर को ट्रीट करना मत भूलिए। चलो अपने आप ट्रीटमेंट होती है, गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट करो तो कंट्रोलर के हिसाब से गॉल ब्लैडर, ट्रिपल वार्मर की ट्रीटमेंट होती है 6 की में अगर गए तो। बट एनीवे कॉन्शियसली यू शुड फाइंड, ठीक है। तो वर्टिकल मेथड का मतलब हो चाहे सिंगल मेरिडियन मतलब वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड का मतलब मेरिडियंस, कई मेरिडियन एक साथ, यिन मेरिडियन हो सकते हैं 2-3 या 3 यांग मेरिडियन हो सकते हैं, ठीक है। यिन को रेगुलेट करने के लिए एंटी सब्जुगेशन या इंसल्टिंग साइकिल, यांग को रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल साइकिल या डिस्ट्रक्टिव साइकिल, ठीक है। ये बातें याद हो गई, ठीक। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन। सर मुझे पूछना था। हाँ केतन भाई, यस सर एक माइग्रेन का केस है, वो टेम्पोरल हेडेक में दर्द है, वो बहुत साल पुराना है और उसकी टंग पूरी ब्लैक हो गई है पूरी टंग। तो मैंने उसको डायग्नोसिस किया तो उसमें फ्रंट सुपॉइंट लीवर का भी किया और CV17 पेरिकार्डियम का भी किया था मैंने उसको। तो उसमें मैंने इन स्टेगनेस इन एक्सेस का डायग्नोसिस किया, तो उसमें लॉन्ग मेरिडियन लेना चाहिए या स्पाइरल वाली वो? अरे तुमको तो पेरिकार्डियम और लिवर दोनों मिल रहा है तो लॉन्ग मेरिडियन तो ऐसे ही हो गई। हाँ तो उसमें अपोजिट फ्लो लेना या सीधा, आपने एक बार बताया था कि स्टैग्नेशन है ना, ब्लैक हो रही ब्लू हो रही क्या टंग ना। हाँ हाँ तो स्टैग्नेशन में हमेशा अपोजिट फ्लो लेना है। हाँ। तो अब आपको 4 मेरिडियन ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी ऐसे, कम से कम हो सकता है कि ऊपर नीचे वाली कोई साइकिल और भी। हाँ एक LU1 भी आया था, LU1 भी आया था। देखो तो इसके मतलब हो गया ना कि दूसरी वाली नेक्स्ट साइकिल इज आल्सो अफेक्टेड। कल ही केस आया था, मैंने डायग्नोसिस किया तो उसमें। अब क्या करना होगा, पहले आप इन 4 मेरिडियंस की ट्रीटमेंट करो। क्या करोगे, क्योंकि जीभ उसकी ब्लैक हो गई है या ब्लू हो गई है, इसके मतलब स्टेसिस तो है, स्टेसिस है हाँ। स्टैग्नेशन है, तो अपोजिट फ्लो। क्या करेंगे, अपोजिट फ्लो में ड्राइनेस, कोल्डनेस, सेडेट, हीट टोन, सिंपल। और यही ट्रीटमेंट कपल्ड मेरिडियन में होगा। कपल्ड मेरिडियन कौन सा है, TW5 GB41 मतलब, अरे सॉरी ट्रिपल वार्मर गॉल ब्लैडर मतलब शाओयांग। तो जियोइन और शाओयांग में, तो जियोइन में अपोजिट फ्लो लिया तो शाओयांग में भी अपोजिट फ्लो लो। और हमारा इंटेंशन क्या है, फर्स्ट नीडल क्या डालोगे, सेडेट कोल्ड। तो अगर कोल्ड को सेडेट कर रहे हैं तो यांग में क्या करना चाहिए, उसमें भी कोल्ड सेडेट। ना 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 हायर टोन, ह्यूमिडिटी। नो नो, हाँ किसने कहा ह्यूमिडिटी, होम ह्यूमिडिटी को करेंगे। यस वेरी गुड ममता। ये सारी बातें अगर आपने ह्यूमिडिटी, क्योंकि कोल्ड को कौन कर रहा है कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ह्यूमिडिटी हाँ।
तो शाओयांग में क्या करोगे, यहाँ कोल्ड सेडेट कर रहे हो तो वहां क्या करोगे, ह्यूमिडिटी को टोन करोगे, टोन करेंगे। हाँ। तो ये 4 मेरिडियन एक साथ पहले ट्रीटमेंट कर डालो। ये बातें हम लोग अगले कोर्स में जो लॉन्ग मेरिडियन करेंगे उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे, करेंगे। ठीक है केतन, तुम्हारी समझ में आ गया? कल आया था तो हो सकता है कि कल फिर आए, तो यू शुड ट्राई, है ना? ओके। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज। सर ये बायलैटरल लगा देना पड़ेगा ना? है जी, ये बायलैटरल लगाना। ये बायलैटरल क्यों लगाएं? इनको समझना चाहिए ना कि कहाँ लगाएं, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में है तो ज्यूइन लेफ्ट में जाए, तो जिस समय ज्यूइन में ची लेफ्ट में रहेगी, शाओयांग में ची राइट में रहेगी। हाँ। एक यिन है एक यांग है, हाँ। समझ में आ रही है कि नहीं बात? और अगर दोनों तरफ अफेक्टेड है तो दोनों तरफ, अदरवाइज एक साइड यिन एक साइड यांग, हाँ। तभी तो बनेगी। और नहीं तो क्रॉस भी लगता है ना, गॉल ब्लैडर और लीवर एक साथ, एक तरफ गॉल ब्लैडर एंड लीवर, और एक में ट्रिपल वार्मर एंड सॉरी गॉल ब्लैडर एक तरफ, लिवर पीसी। हाँ माने पैर का हाथ का है ना, एक हाथ। हाँ सर। एक तरफ हाथ का यिन लगे, दूसरी तरफ पैर का यिन लगे। हाँ। एक तरफ हाथ का यांग लगे, दूसरी तरफ पैर का यांग लगे। ये सारी बातें हम लोग लॉन्ग मेरिडियन में अच्छी तरह समझेंगे, डोंट वरी। अभी 5 एलिमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी 5 एलिमेंट देख रहे हैं हम लोग, रिवाइज कर रहे हैं। ओवरऑल लगा, हाँ आपको समझ में आ गया होगा विजय, बिकॉज यू हैव अटेंडेड सो मेनी क्लासेस। यस सर। नेक्स्ट क्लास हम है जी, क्या शालिनी जी? सर इसमें यांगमिन भी लेंगे? यांगमिन क्यों, अभी हम नहीं लेंगे ना। हमने अगर हमने 4 मेरिडियन की ट्रीटमेंट कर दी, नहीं सर, इसका ये इट्स एक्टिंग एज अ पिवट, ज्यूइन एंड यांगमिन इज एक्टिंग। हाँ यांगमिन, तो फिर जो ट्रीटमेंट ज्यूइन में हो रही है सेम ट्रीटमेंट यांगमिन में होगी। यस यस। लेकिन वो दूसरी साइड होगी, जिस साइड ज्यूइन हो रही है उसके अपोजिट साइड यांगमिन। बिकॉज़ इट इज अ क्रोनिक केस ना सर, तो आप देख लो ना, अगर आपको लगता है कि उसके बबल्स में भी प्रॉब्लम है, बबल मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, उसके मान ले कॉन्स्टिपेशन है, पूरा केस बनाना केतन, फुल केस। हाँ सर। हाँ, तो बबल मूवमेंट नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर का क्या हाल है, एवरीथिंग यू शुड सी। और सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले उसको क्या करना, ईओवी। हाँ ईओवी क्या लगेगा इस केस में, मोस्ट प्रोबेबली TW5 GB41 SP4P6। बस यही है। अरे आपकी बात सुन के इतना मैं बता सकता, हाँ यही लगेगा। तो पहले यही लगा देना, 1 दिन 2 दिन यही लगा लेना, तीसरे दिन 4 मेरिडियन एक साथ जरूर ट्रीट करना। अभी तो सर ईओवी और लॉन्ग मेरिडियन में ही सब काम चल जाता है। हाँ बिल्कुल आराम से चलता है, आप करके देखो, इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। एंड ये बहुत फास्ट है सर, ये बहुत फास्ट, बहुत सुपर फास्ट हो रहा है ये तो, सुपर लॉन्ग मेरिडियन का। लॉन्ग मेरिडियन। और पहले आप ईओवी लगा लो ना। जी। हाँ सब लोग ट्राई करो, और जिनको रिजल्ट नहीं मिले तो जब ऐसा फॉलोअप क्लासेस होती है तो केस हिस्ट्री लेके आना चाहिए कि सर इसमें हमने किया, नहीं मिला रिजल्ट, तो हम लोग इसको फिर से देखेंगे, और अगर रिजल्ट मिल गया तो वो भी हम लोग देखेंगे कि क्यों मिला। आज देखिए सर न्यूरोपैथी केस ठीक हुआ, डायबिटिक न्यूरोपैथी केस था वो तो ठीक हो गया पूरा, लेकिन फिंगर तो अभी वैसे ही थे उसमें। क्या चीज? फिंगर नापने में मैंने ईओवी फिंगर डायग्नोसिस किया था उसका। तो उसमें SP4P6 TW5 GB41 आया था, और मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन निकाला था, तो उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी पूरा ठीक हो गया, लेकिन फिंगर की अभी नाप वैसे ही है। अभी आ जाएगी, आप करते रहो, हो सकता है कुछ बात हो, है ना, अभी उसको करते रहना, जब तक फिंगर इक्वल नहीं होता है तब तक आप, तो अब आपकी ट्रीटमेंट सब कम हो जाएगी ना। नहीं तो सर बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है उसको। हाँ तो बीपी देखो कैसे, बीपी जो हो रहा है, तो ये जब आप ईओवी लगाओगे, अब आप दूसरे तरह से ट्राई कर लो ना, खाली ईओवी लगाओगे तो बीपी भी कम हो जाती है।
sp4p6 से भी बीपी कम होती है, tw5gb41 से भी कम होती है, lu7k6 से भी कम होती है, और si3ub62 से भी कम होती है। कायदे से लगना चाहिए। बात कर लेना हमसे, व्हाट्सएप में बात कर लेना, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है।